सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ईयर 2023. ओके, सो ये लाप्लास का है. सॉल्व दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बट हियर द राइट हैंड साइड इज नॉट गिवन टू मी. राइट हैंड साइड इज जस्ट सम आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ टी. तो कोई इशू नहीं है, वी विल कंसिडर इट, वी विल ट्रीट इट एज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन. हम इसको एज इट इज रखेंगे. सो हम लोग लाप्लास में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना. सो दिस इज माई वाई डबल डैश माइनस 4y डैश plus 3y and right hand side is some arbitrary function of t. अपना पहला स्टेप होता है टू अप्लाई लाप्लास ऑन द एंटायर इक्वेशन. सो y डबल डैश माइनस 4 टाइम्स लाप्लास ऑफ y डैश प्लस 3 टाइम्स लाप्लास ऑफ y एंड द राइट हैंड साइड इज लाप्लास ऑफ दिस आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ t. अब यार इसको कैसे ओपन करते हैं? देयर इज ए फॉर्मूला फॉर इट. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. सो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई एंड एस की पावर डिक्रीज होती चली जाएगी माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो. दिस इज द फॉर्मूला फॉर लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश इन केस यू डोंट नो इट. सो माइनस 4 टाइम्स व्हाट इज लाप्लास ऑफ वाई डैश, इसका भी फॉर्मूला है एस टाइम लाप्लास ऑफ वाई माइनस वाई ज़ीरो माइनस वाई ज़ीरो and then plus 3 times Laplace of y plus 3 times Laplace of y and this is equal to right hand side arbitrary function hai, so keep it arbitrary, simply write fs. We know when we apply Laplace to any function then the function gets changed into the function of s. अब यहाँ लेकिन same function मत लो, take another function, let's say phi, another function of s, है ना. नहीं तो इसका मतलब ये हो जाएगा टी को ही एस से रिप्लेस करना है, वो तो नहीं होता है ना. वी डोंट हैव टू, आई मीन लाप्लास ऑफ एफ टी इज नॉट एफ एस, इट इज सम अदर फंक्शन ऑफ एस. ओके, नाउ insert the boundary conditions, insert the initial conditions. y0 is 1, y dash 0 is 0. So it will be s square Laplace of y minus s minus 4s Laplace of y and y0 is 1, so it will become plus 4 plus 3 times Laplace of y plus 3 times Laplace of y is equal to some arbitrary function of s. Now we have to gather Laplace of y at a single place. So Laplace of y का coefficient क्या है? s square minus 4s plus 3. Now the remaining term is minus s plus 4 minus s plus 4 is equal to phi s. Is it correct? The remaining term, that means minus s here and 4 here. Minus s plus 4 simply. Okay. Now I need to keep Laplace of y on one side and I need to take everything to the other side. ये रहता है हमारा rule. So basically I have Laplace of y into s square minus 4s plus 3. S square minus 4s plus 3 it is. And right hand side will be phi of s plus s minus 4. Right hand side is phi of s plus s minus 4 minus 4. Now Laplace of y is equal to, take this to the other side, so it is phi s divided by s square minus 4s plus 3 plus s minus 4 divided by s square minus 4s plus 3. ये सेम आ गया. So it is equal to, so y is equal to Laplace inverse of phi s डिवाइडेड बाई, इसको फैक्टराइज कर लो, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं s माइनस 1 एंड s माइनस 3, s माइनस 1 एंड s माइनस 3 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 4 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 इंटू s माइनस 3. नाउ वी डोंट नो व्हाट फाई s इज, सो हम यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन लगाकर छोड़ देंगे. I mean we only can apply the convolution because we don't know what phi s is. So this is equal to Laplace inverse of phi s into remaining function को as it is लिखेंगे s minus 1 into s minus 3 plus Laplace inverse of, here we will do partial fractions of it and you do know how to solve it. So basically we have s minus 4 divided by s minus 1 into s minus 3. So if I do partial fractions of it, it is a by s minus 1
प्लस बी बाई एस माइनस 3. यहाँ पर s माइनस 1 है, सो यू विल पुट s इज इक्वल टू 1 हियर. यहाँ s को 1 पुट करो, सो 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 3. ठीक है, इसमें पुट नहीं करना है, ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएगा. इस फैक्टर को छोड़ देना है. यू हैव टू लीव दिस फैक्टर. सो माइनस 3 बाई माइनस 2, सो इट विल बी 3 बाई 2. सो इसका a आ गया 3 बाई 2. सो 3 बाई 2 बाई s माइनस 1. नाउ पुट s इज इक्वल टू 3 फॉर b. s को 3 पुट करेंगे. दिस यू कैन डू ओनली इन द लीनियर फैक्टर्स. लीनियर के केस में कर सकते हो. 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 1. So it is minus 1 by 2. So plus minus 1 by 2 divided by s minus 3. We got these partial fractions. सही है ना? ठीक है. सो नाउ इसके भी करने पड़ेंगे हमें. बेसिकली इसको कैसे डील करोगे, ये तो हो जाएगा. आई मीन इट इज़ वेरी सिंपल. इन ऑर्डर टू डील दिस, लेट सपोज दिस फंक्शन इज माई जी एस. लेट सपोज दिस फंक्शन इज माई जी एस, है ना. तो लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस फाइंड कर लेते हैं. लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई s माइनस 1 एंड s माइनस 3. इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करोगे, सो इट विल बी लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई 2 इंटू s माइनस 1 s माइनस 3 प्लस 1 बाई 2 इंटू s माइनस 1. आई टोल्ड यू कि s सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और जो कोफिशिएंट आता है उससे डिवाइड कर दो. ठीक है, इट्स अप टू यू. जैसे भी पार्शियल फ्रैक्शंस आप करना चाहते हो, इट्स अप टू यू. सो इसका लाप्लास इनवर्स क्या आएगा? इट इज़ माइनस 1 बाई 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई s माइनस 3 प्लस 1 बाई 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई s माइनस 1. लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज e टू द पावर 3t एंड इसका आएगा e टू द पावर t. सो आई गॉट दिस इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस e टू द पावर 3t माइनस e टू द पावर 3t प्लस e टू द पावर t प्लस e टू द पावर t. ठीक है, सो इट इज माइनस e टू द पावर 3t. दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस. नाउ ये हमारे किस काम का है? यू नो वेरी वेल that whenever we have product of two functions, whenever Laplace inverse of phi s into gs is being asked to us, अगर ये पूछा जाता है, then this is equal to Laplace inverse of phi s star Laplace inverse of gs. Laplace inverse of gs. The star here is the convolution operation. Star here is the convolution operation. And it is open like 0 to t f of t minus u into let's say g of u du, where this is Laplace inverse of phi s. This is Laplace inverse of phi s. I mean ft is the Laplace inverse of phi s and gt is the Laplace inverse of gs. ठीक है, ट्राई रिलेटिंग इट ना, ट्राई रिलेटिंग इट. जैसे मैंने क्लास में बताया था, लाप्लास इनवर्स प्रोडक्ट में ओपन नहीं होता है. डू नॉट एवर ट्राई टू थिंक कि जैसे इफ आई हैव टू फंक्शंस तो लाप्लास तो सेपरेट हो जाता है, बट लाप्लास इनवर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड लाइक दिस लाइक दैट, है ना. इनफैक्ट लाप्लास भी सेपरेट नहीं होगा. मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो उसको डील करना पड़ता है हमें. और वैसे भी वहाँ तो फंक्शन ही अलग होता है ना, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, है ना. सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. आई मीन लाप्लास भी कैन नॉट बी सेपरेटेड. फॉर इंस्टांस इफ इट इज़ लाप्लास ऑफ एफ टी इंटू जी टी, यू कांट राइट इट एज लाप्लास ऑफ एफ टी इंटू लाप्लास ऑफ जी टी. सो मल्टीप्लीकेशन में दैट्स नॉट पॉसिबल. अरे वाह, थैंक गॉड. सो मल्टीप्लीकेशन में दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सेम हियर, इफ इट इज़ ए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, सो इंडिविजुअली अगर ओपन करोगे तो बीच में कॉन्वोल्यूशन आएगा. दिस इज़ कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन. इसमें क्या होता है
you basically take, let's suppose phi s का लाप्लास इनवर्स एफ टी है एंड जी एस का लाप्लास इनवर्स जी टी है. So you will replace t as t minus u here and this t as u, and you can interchange them as well. You can interchange them as well. You can also write f u g t minus u. It's up to you. And integration with respect to u and 0 to t limits of integration. तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे बिकॉज आई डोंट नो दिस फंक्शन. सो मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा कन्वोल्यूशन अप्लाई करके. सो दिस इज इक्वल टू, सो माई वाई इज इक्वल टू फाइनली, अरे ये ना वेट ए मिनट. Finally, my y is equal to, let's erase one of the slides now. So finally, my y is equal to Laplace inverse of phi s into gs plus Laplace inverse of it is 3 by 2 by s minus 1, 3 by 2 by s minus 1 plus minus 1 by 2 by s minus 3, s minus 3 it is. अंडरस्टूड. सो ये ओपन होगा. दिस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ फाई एस विद द स्टार ऑपरेशन, लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस प्लस इसका लाप्लास इनवर्स आएगा सिंपली 3 बाई 2 ई टू द पावर टी एंड माइनस 1 बाई 2 ई टू द पावर 3t. सो दिस इज इक्वल टू, इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, एफ टी. Because remember I have written Laplace of ft as phi s, so Laplace inverse of phi s will be ft star. What is the Laplace inverse of gs? 1 by 2 e to the power t minus e to the power 3t. 1 by 2 e to the power t minus e to the power 3t. ये दोनों तो सॉर्टेड है, इनको तो नहीं छेड़ना है. 3 e to the power t minus e to the power 3t. सो दिस इज इक्वल टू, इसमें कॉन्वोल्यूशन लगाएंगे 0 टू t. लेट सपोज आई रिप्लेस t हियर एज t माइनस u एंड आई रिप्लेस t हियर एज u. एक में u, एक में t माइनस u du, एंड दिस फंक्शन विल रिमेन एज इट इज 3 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 3t. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर यार, ये हमारा फाइनल आंसर है. Okay, this is our final answer of this question. All right everyone, so इसमें एक क्वेश्चन बचा है बिकॉज आई हैव नॉट टॉट यू समथिंग जो कि लाप्लास में यूज़ हो, जो लाप्लास में बचा हुआ पोर्शन है, that is from the remaining portion of Laplace. So we will discuss that question once that portion is discussed. Okay, so we will cover previous questions of each and every subject here, and do like, share and subscribe. Okay then, thanks a lot. Bye everyone.